have solved three numericals, है ना? First numerical was based on the bolt fitted in pinned and ground holes, है ना, finger tight bolts. And second numerical was based on bolt fitted in large clearance hole. And third numerical that we have solved today was based on full design of the rigid flange coupling. So after designing the rigid flange coupling, we are just moving to flexible coupling. The advantage of the flexible coupling that it can tolerate the misalignments. It can tolerate the angular misalignment up to 1.5 degree, lateral misalignment up to 0.5 mm, and axial alignment also up to 0.5 mm. So design of the flexible bush coupling is almost same as per the rigid flange coupling. Only the difference, we will focus only the difference. So difference is in this part. In this part, there were bolt in the rigid flange coupling. So here, in the place of bolt, we are using pin. So I am making two columns. One is for rigid and one is for bush coupling or flexible coupling. Bush and flexible are synonyms. Bush coupling are known as flexible couplings. So in rigid couplings, the component is bolt. Here, in place of bolt, we are using pin. We are using pin. And this hatchet portion is the liner. So pin plus liner plus this portion is bush, rubber bush. So this is made up of rubber. So this is rubber bush. And this is the liner. This liner may be made of brass. So it is a brass lining. And this is the pin part. So the pin diameter is also difference in the input flange and output flange. So here the pin diameter is D1. Here the diameter is more than D1. Then there is a liner. Then there is a bush. So pin, liner and bush assembly. Pin, liner and bush assembly is used in place of bolt. ठीक है, तो pin, liner, bush assembly use होने से, है ना, bush are flexible elements. They are made up of rubber, so it can tolerate some misalignment. It can tolerate some vibrations and it can tolerate some misalignments. तो यदि मैं बात करूं rigid coupling में, what are the components? Shaft, है ना, तो shaft यहाँ भी है, everything is same. यदि हम बात करें hub and flange, so hub and flange are exactly same, no problem, है ना, तो उनकी डिजाइन भी लगभग सेम ही होगी, है ना. शाफ्ट का डिजाइन पैटर्न रिजिड फ्लैंज कपलिंग और बुश कपलिंग में सेम होगा, हब और फ्लैंज का पैटर्न भी सेम होगा. हब के केस में हमने दो चेक लगाए थे, है ना, चेक 1, चेक 2, तो वो चेक हम यहाँ भी लगाएंगे, बुश कपलिंग में भी हम यूज करेंगे. तो केवल डिफरेंस ये है कि बोल्ट की जगह पर अब हम पिन को डिजाइन करेंगे, है ना. We will design the pin, we will design the liner and the bush, all three in place of bolt. And after that, key design is same in both the cases. Rigid flange coupling and both keys common. And any other component? Only this. So directly coming to the design part. So in the design part, these are some advantage. It can tolerate points that we have already discussed. इसमें कोई problem नहीं है. अच्छा, disadvantage of the flexible coupling क्या है? Flexible coupling का disadvantage ये है कि due to the flexible elements, इसका जो radial size है ना, इसका जो outer diameter है ना, radial space, it occupies more radial space. It occupies more radial space as compared to rigid and other couplings. So this is the disadvantage. And cost of the flexible coupling is also more, because we are using brass liner and it requires more radial space as compared to other types of coupling. So this is the resisting force in the rubber bushes. तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं.
Again, how many bushes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this diagram, 6 pins. है ना? There are 6 pins, 6 liners, and 6 bushes. Okay. So this is the dB. dB means it is the diameter of the bush. dB means it is the diameter of bush. And LB means it is the length of the bush. Okay, so projected area is dB/LB. So this part is the area. Area when multiplied by pressure. So this pressure is PM. So there is a limitation on this pressure during design. So this pressure can be assumed, or if it is not given in question, you can assume it. अभी हम numerical करेंगे तो इस pressure को 1 Newton per mm square or some 0.5 or 0.6. We will assume this pressure. So this is the projected area. Area multiplied by pressure. It is the force coming on the bush. So this is the force coming on one bush. If I multiplied this by n, n is the number of the bushes. So this is the total force. Or when this total force multiplied by the radius, it will give you the torque. So what is the radius? So radius is, what is the radius? So MT is force into pitch circle radius. This is the radius into n. So this P can be replaced by this value. Because n is already multiplied here. So we will just taking the force on one bush and we are multiplying by number of the bushes and radius. So we can calculate the torque. So after solving this, MT equal to, we can get half PM dB LB dm. This will be the formula. Just I am putting in place of P, it is dB LB PM into d by 2 into n. So this will be half PM dB LB dm. So this is the final formula for the torque. So LB means length of the bush, dB means diameter of the bush. These are some assumptions because so many parameters are involved. So analytically the solution is not possible. So we are taking some assumptions that the ratio of length and diameter of the bush is 1 and pressure on the bush is 1 megapascal. MT is given by half dB square dm. Direct shear stress in the pin. So shear stress is force upon area. So D1 is the pin diameter. For pin diameter, we can use an empirical relation 0.5 by root n. 0.5 d by root n. 0.5 d by root n. And this tau has again limitation. As per the Indian standard, the shear stress in the pin should not be greater than 35 megapascal, or it should be less than 35 megapascal. So according to Indian standard, the allowable shear stress for the pin is 35 megapascal. So now come to the design procedure. So step 1 is exactly same. For calculating the shaft diameter, you have to calculate the torque first. Then use this formula and determine the D. So first step is exactly similar. Second step, dimension of the flange. So this step is also similar. These are the empirical relations. Diameter of the hub will be 2D, 2 times shaft diameter. Length of the hub 1.5 times shaft diameter. Pitch circle radius between 3D to 4D, you can take any value, either 3D or 4D or in between them. Thickness of the flange 0.5 times shaft diameter. Thickness of the rim 0.25 times shaft diameter. And there are 2 checks. So first check is in the hub, shear stress in the hub, which is given by this formula, tau equal to MT R by J. J is polar moment of inertia, as usual, exactly same that we have done in rigid flange coupling. So check 1 is exactly same, and check 2 it at the junction of the hub. So junction of the hub is this tau is the shear stress at the junction of the hub. So you have to perform both the checks.
है ना. फर्स्ट कैलकुलेट द एम्पेरिकल डायमेंशन, then perform both the checks. So step 1 and step 2 are exactly similar as we have performed in the design of rigid flange coupling. No change. Now come to step 3. So in the step 3, there is a change. In place of bolt diameter, we are calculating the diameter of pin. We are calculating the diameter of pin. And step 3 change. तो बोल्ट की जगह पे क्या आ गया, पिन आ गया. पिन का डायमीटर हम कैलकुलेट करेंगे 0.5 डी बाई रूट एन, ना. अगेन द एम्पेरिकल रिलेशन वेयर एन इज द नंबर ऑफ पिन्स, नंबर ऑफ पिन्स. तो यू कैन अज्यूम एन इक्वल टू 4 और एन इक्वल टू 6 एज पर योर कन्वीनियंस, है ना. 4 या 6 में से कोई एक वैल्यू हम एन के लिए अज्यूम कर सकते हैं. डी साफ डायमीटर है, सो वी कैन कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द पिन. Once we have diameter D1, then we can check the shear stress. We can check the shear stress produced in the pin with this formula. ठीक है. और ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन हुआ. टॉ इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कैन बी रिटन बाय ट्वाइस mt by dn. This is the force. And area is pi by 4 d1 square. So just you will solve, then you will get this 8 mt by pi d1 square dn. So this tau should be less than 35 megapascal. ठीक है. तो यहाँ पे आपको पिन के लिए shear stress कोड की तरफ से फिक्स है. It should not be greater than 35 megapascal. So this step is changed. थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, है ना. अब आते हैं स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 भी चेंज है. डायमेंशन ऑफ द बुसेस, है ना. तो अब बुसेस की डायमेंशन के लिए कैसे करेंगे. दिस इज द अजम्पशन LB by DB is 1, so LB equal to DB, and this is the formula for the torque. This is the formula for the torque. And step 5 is similar, no change in step 5. Dimension of the key as usual, जैसा हमने रिजिड फ्लैंज कपलिंग में की को डिजाइन किया था, बिल्कुल उसी तरह. लेंथ ऑफ द की विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द हब, एंड शियर स्ट्रेस इन द की इज ट्वाइस mt by dbl, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द की इज 4 mt by dhl, है ना. सो स्टेप 3 की जगह पर स्टेप 3 और स्टेप 4 यहाँ पे आ जाते हैं. बस उसमें चेंज है, बाकी कोई चेंज. ठीक है. तो वी आर मूविंग टू न्यूमेरिकल. सो एग्जांपल, a flexible coupling is used to transmit 15 kilowatt power at 100 rpm. तो आपके पास पावर अवेलेबल है, आरपीएम अवेलेबल है. फाइंड द टॉर्क, है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में टॉर्क की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना. इवन इन केस ऑफ शाफ्ट डिजाइन यू नीड टॉर्क. तो शाफ्ट डिजाइन इज गिवन बाय फॉर्मूला 16 mt by pi d cube. So you need torque. So torque is given by 60 10 to the power 6 into power in kilowatt. It is 15 given in the question. So it is 15 divided by 2 pi n. N is 100 rpm. Solve it. How much torque is coming? संदीप है क्लास में? यस सर, 14,32,394. 0.49 है ना, बिल्कुल सही. So it is 14,32,394.49 Newton mm. So torque is available to us. जैसे ही हमको टॉर्क मिल गया, we can find the diameter of the shaft, है ना. परमिसिबल शियर स्ट्रेस तो हम शाफ्ट का या तो मटेरियल दिया होगा या फिर हम मटेरियल अज्यूम कर लेंगे, तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस हम निकाल पाएंगे. तो जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. देयर आर 6 पिन्स, तो n इक्वल टू 6 गिवन, है ना. रिजिड फ्लैंज कपलिंग में बोल्ट है और फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या है, पिन है. सो देयर आर 6 पिन्स एंड देयर पिच सर्किल डायमीटर इज 200 mm. So pitch circle diameter is 200 mm. It is given. The effective length of the bush LB, the gap between two flanges, and the length of the pin in contact with the right hand flange are 35, 5, and 23 millimeter respectively. ठीक है. तो 3 वैल्यू दे रखी हैं. इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बुश, it is 35. It is the gap between the flanges, है ना. It is the
पिन इन कांटेक्ट विद द राइट हैंड फ्लैंज, है ना। तो डिजाइन किस तरह से है, आपके पास पहले एक शाफ्ट है ना, फिर आपके पास दूसरा शाफ्ट है, इसके ऊपर आपने इस तरह से फ्लैंज टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है ना। यहाँ दूसरा वाला फ्लैंज है, ऐसी तो डिजाइन होती है कपलिंग की। यहाँ पर अब बोल्ट की जगह पे क्या आ गई, पिन आ गई है ना। सो देयर इज ए पिन, है ना। पिन के बाद में ये आपका पिन आ गया। तो अब ये हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है। तो अब यहाँ पे जो 3 डायमेंशन दे रखी हैं, एक तो गैप की डायमेंशन दे रखी है, ये गैप तो 5 mm है, दोनों शाफ्ट के बीच में या दोनों फ्लैंज के बीच में जो गैप है वो 5 mm है, ठीक है। और पिन जो है राइट हैंड फ्लैंज के साथ जो कांटेक्ट में है वो वाली डिस्टेंस जो है वो 23 mm है, और लेफ्ट हैंड फ्लैंज में जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है, 35 mm दे रखी है। तो ये जो बुश है यहाँ पे, उस बुश की जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है, 35। तो 35, 5, 23, ये 3 डायमेंशन हमें यहाँ गिवन है। तो ये डायमेंशन कहाँ कहाँ आ सकती हैं, हो सकता है जब कभी पिन, ये जो पिन होती है, इस पिन पर कौन कौन से स्ट्रेस एक्ट करते हैं, है ना। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग के केस में पिन इज अंडर शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सो व्हेन देयर इज ए बेंडिंग, तो ये डिस्टेंस जो है आपकी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने में यूज हो सकती है ना। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, द परमिसिबल शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द पिन आर 35। तो शियर की लिमिट तो 35 है और बेंडिंग की जो लिमिट है वो 152 मेगा पास्कल है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट, एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज। हाँ हेलो, हाँ सर। तो now the question is calculate pin diameter by shear consideration and pin diameter by bending consideration। ठीक है, दोनों कंसिडरेशन से डायमीटर निकालना है, ठीक है। मान लीजिए as per the shear consideration you are getting suppose 12 mm, suppose as per shear consideration you are getting 12 mm, and as per bending consideration you are getting 16 mm, then you will take the maximum value, है ना। So if bending consideration is giving maximum value, if bending consideration giving maximum value, then this will be the criteria of design. If shear consideration giving maximum value, then shear will be the criteria of design. So these are the answers. First answer is 9.32 and second answer is 15.33. Okay, this is one question. This is another question, है ना। ये मेरे ख्याल से फुल कपलिंग डिजाइन है। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए बूस्ट पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग to connect the output shaft of an electric motor to the shaft of a centrifugal pump. Now, there are two shafts. First shaft, electric motor shaft, and second one is centrifugal pump. Motor delivers this much kilowatt power at 720 rpm. The starting torque of the motor can be assumed to be 150% of the rated torque. ठीक है, ये 150% उसमें भी था, फ्लेक्सिबल का रिजिड कपलिंग में भी था। तो 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे टॉर्क को, कोई दिक्कत नहीं है। Design the coupling and specify the dimension of its components. So you have to design the coupling and specify the dimension of its components. तो ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको मटेरियल तो गिवन नहीं है, तो आपको मटेरियल अज्यूम करने पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसपे हम थे। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पिन डायमीटर बाय शियर कंसीडरेशन, ठीक है, इसको निकालते हैं। तो चलिए मैं जरा सा इसे क्लियर कर लेता हूं। So now we are focusing, our concentration on pin diameter by shear consideration, ठीक है। तो पिन के लिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं। एक तो पिन का डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, d1 इक्वल टू 0.5 d डिवाइडेड बाई रूट n। तो 0.5 इंटू डी। अब d मतलब शाफ्ट डायमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है क्या, देखिए शाफ्ट डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है क्या, इट इज नॉट गिवन, है ना। 15 किलोवाट पावर दे रखी है, 100 आरपीएम दे रखी है, तो आपने एमटी निकाल लिया था। तो एमटी आपका कितना आ गया था,
14,32,394.49 न्यूटन mm, ये हमारा एमटी आ चुका है। 6 पिन है तो नीचे तो √6 हो जाएगा, √n की जगह पर। पिच सर्किल डायमीटर 200 है, ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू 200 है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बुश गिवन है, गैप बिटवीन टू फ्लैंजेस गिवन है, लेंथ ऑफ द पिन, कॉन्टेक्ट विथ हीट डिस्टेंस गिवन है, परमिसिबल शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस फॉर द पिन आर 35। ठीक है, तो पिन के अंदर जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, जरा बताइए एनीवन। पिन में जो भी शियर स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, वही है सेम 8mt बाई पाई डी एन d1 स्क्वायर, पाई डी एन d1 स्क्वायर। चेक कर लीजिए इस फॉर्मूले को। पिन के केस में ये देखिए 8mt बाई पाई डी एन d1 स्क्वायर, ठीक है, 8mt बाई पाई डी एन d1 स्क्वायर, दिस इज द शियर स्ट्रेस फॉर्मूला। तो अब इसमें देखिए mt आपके पास अवेलेबल है, d पिच सर्किल डायमीटर 200 क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 200, n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 है, नंबर ऑफ द पिन्स, tau की वैल्यू 35, इट इज आल्सो गिवन इन क्वेश्चन। So only the unknown is d1. Only the unknown is d1. So you can find d1 from here. So there is no need to use this formula here now, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर हमें शाफ्ट के डायमीटर की जानकारी नहीं है पूरे क्वेश्चन में, इसलिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली d1 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड फॉर्मूले से। तो इसको जरा सॉल्व कर दीजिए और d1 की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। 9.319। 9.319, वेरी गुड सर। तो d1 इज, हाँ बोलिए। हाँ सर, शाफ्ट का डायमीटर पहले निकाल सकते हैं अपन? नहीं, शाफ्ट का डायमीटर निकाल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि शाफ्ट का मटेरियल भी नहीं पता है ना, तो शाफ्ट का परमिसिबल शियर स्ट्रेस मालूम नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और क्वेश्चन शाफ्ट की डिजाइन करवा भी नहीं रहा है। क्वेश्चन तो इंटरेस्टेड है केवल पिन का डायमीटर फाइंड करने में, है ना, ये फुल डिजाइन ऑफ द कपलिंग का क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो कंसंट्रेट हो रहा है केवल पिन पर, है ना। तो अब पिन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये d1 है और एक ये है। यदि हम यहां से d1 निकालते हैं तो हम शियर स्ट्रेस को चेक करते हैं कि वो 35 से कम है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मोल्ड कर लिया अपने आप को, हमें ये 35 गिवन है और इससे हमने d1 कैलकुलेट कर लिया। अब जब ये d1 मिल जाएगा आपको यहाँ, तो फिर अब आप यहाँ से शाफ्ट डायमीटर निकाल सकते हैं, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग लग गई है अब आपकी, ठीक है। तो अब चूंकि शाफ्ट डायमीटर पूछा नहीं है इसलिए अब यहाँ पे ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। तो आवर फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, पिन डायमीटर बाय बेंडिंग कंसीडरेशन। तो बेंडिंग कंसीडरेशन से आपको पिन का डायमीटर निकालना है। तो कैसे निकालोगे पिन का डायमीटर बेंडिंग कंसीडरेशन से, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, आपको ये करना है एज ए प्रैक्टिस, है ना। भंडारी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो पहले आप खुद करिएगा और उसके बाद ये सॉल्व में मिल जाएगा आपको, तो वहां पे बेंडिंग से कैसे निकाला गया है उसको भी करिएगा, है ना। तो बेंडिंग से निकालने में कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सेकंड पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं भाई, बेंडिंग कंसीडरेशन। तो बेंडिंग में क्या है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय my डिवाइडेड बाय i, यही तो हमारा जनरल फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर पिन के केस में पिन का डायमीटर कितना है, d1, पिन का डायमीटर d1 है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, d1 by 2, y कैन बी रिटन एज d1 by 2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज पाई बाय 64 d14। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 64 d14। अब बचा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और सिग्मा बी के लिए तो आपको लिमिट दे रखी है 152, बेंडिंग स्ट्रेस की जो लिमिट है दैट इज 152, तो सिग्मा बी तो 152 हो जाएगा। आई आपका d1 के फॉर्म में आ गया, y आपका d1 के फॉर्म में आ गया। अब m मतलब बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए
आप क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यही तो होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, एक तो 35 की डिस्टेंस है, फिर 5 की डिस्टेंस है, फिर आपकी 23 की डिस्टेंस है। तो ये जो पिन है, यहाँ पे जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो फोर्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को जब आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो वो पॉइंट लोड अपनी लेंथ के सेंटर पे एक्ट करेगा, है ना। तो एक तरह से ये समझ लो कि इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को आप पॉइंट लोड में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट लोड एफ, ठीक है। अब ये पॉइंट लोड की डिस्टेंस कितनी हो गई, इस 35 का हाफ, यानी कि 17.5, 17.5 प्लस 5, ठीक है। ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे पिन का डायमीटर चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट क्रिटिकल रहता है। तो इस पॉइंट पर यदि हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब फोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू, तो डिस्टेंस तो गिवन है, 35 का आधा है 17.5, 17.5 प्लस 5 22.5, तो डिस्टेंस मिल जाएगी। अब फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स निकालने के लिए ट्वाइस mt बाई डी, ये तो होता ही है फॉर्मूला, ट्वाइस mt बाई डी एन। अब mt तो क्वेश्चन में मालूम है हमें, mt तो हमने निकाला ही है 14,32,094। तो mt अवेलेबल है, d अवेलेबल है, पिच सर्किल रेडियस 200, n 6 अवेलेबल है। तो यहां से फोर्स मिल जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करोगे तो बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट को यहां पुट करोगे तो d1 फाइंड हो जाएगा। तो वो आंसर आपका कितना आएगा, 15.33। तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, बेंडिंग क्राइटेरिया, मैक्सिमम ऑफ ट्यूब। सो फाइनल डायमीटर ऑफ द पिन, है ना, फाइनल डायमीटर ऑफ द पिन इज 15.33। आपको इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसको मैंने कंसेप्ट दे दिया आपको बेंडिंग का, और आप इसे कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं 5-7 मिनट इस एग्जाम्पल पर, है ना? तो इस एग्जाम्पल में भी हम अब केवल उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे जो चेंज है ना, बाकी बहुत सारी चीजें तो रिजिड के हिसाब से सेम होंगी। सो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मोटर डिलीवर्स 20 किलोवाट एंड 720, तो आपको एक तरह से एमटी मिल गया, ठीक है, पावर और आरपीएम दिया तो एमटी मिल गया। एमटी में फिर आपने स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर इज 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क, तो आपने इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको फाइनल एमटी मिल गया, करेक्ट, 1.5 गुना कर दिया आपने उसे। जैसे ही आपको फाइनल एमटी मिल गया, अब क्वेश्चन है डिजाइन द कपलिंग। डिजाइन द कपलिंग मींस आपको साफ्ट भी डिजाइन करना है, तो साफ्ट का मटेरियल फाइनल करिए, है ना, साफ्ट का मटेरियल आपको फाइनल करना है। मटेरियल फाइनल करिए, फिर उसकी SYT आपको पता लग जाएगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप डिसाइड करिए, तो आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल सिलेक्शन के लिए मैंने एक यहाँ पे पेज बना रखा है, तो देखिए, साफ्ट्स आर सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल शियर स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ 40 C8 ले लिया, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने कौन सा लिया था, 30 C8 लिया था या 35 C8 लिया था, जो भी लिया था। अभी यहाँ पे SYT 380 है, पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस था मटेरियल, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले हमने 2.5 लिया था, अभी इसमें कितना अज्यूम किया गया है, 2 अज्यूम किया गया है ना। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो 40 C8 मटेरियल ले लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले लिया, तो आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस हो गया 0.5 इंटू 380 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है, 95 मेगा पास्कल। तो जैसे ही आपको ये 95 मिला, तो अब आप साफ्ट की डिजाइन कर सकते हो। टॉ इक्वल टू क्या होता है, 16 mt बाई पाई डी क्यूब। टॉ की वैल्यू 95, 16 mt आप निकाल चुके हो, है ना, जरा निकाल लीजिए mt। mt को सॉल्व करके बताइए, 60 इंटू 10⁶ इंटू 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई 720, इसको सॉल्व कर दिए, कितना आता है,
कौन कर रहे हैं? संदीप कर रहे हैं। 2,65,000 कितना? 2,65,000 2,55,000 2,65,260 260 है ना। 2,55,260 पॉइंट। और वो डायरेक्ट मैं 60 कर दिया उसको लास्ट में से। क्या कर दिया? सर मैंने उसको सीधा कर दिया, अप्रोक्सली बता दिया उसको 60। अप्रोक्सीमेट मत लिया करिए ना, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लीजिए। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, जो जो आ रहा है वो बताइए कितना आ रहा है। 2,65,000 हाँ 2,65,000 हाँ 2,55,000। अच्छा जीरो पूरा पूरा 2,55,000 ये आ रहा है। 2,65,000 तक 258 आ रहा है सर। 2,65,258 0.23 0.23 न्यूटन mm। अब इसमें 1.5 को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि टॉर्क 1.5 ज्यादा है ना 150%। वो बताइए वैल्यू कितनी आई? 3,97,887 3,57,887। 97,097 ये सही है? 357 या 397? 397 397 397 887 887.35 0.35। ठीक है, अब आपको टॉर्क मिल गया। इस टॉर्क को आप यहाँ यूज कर लीजिए। 397,887.35 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। यहाँ से आप डी बता दीजिए कितना। 27.73। तो देखो आंसर नीचे दिया हुआ है, डी इक्वल टू 27.7। ये आ रहा है आपका। यस इस सर। 27.73 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 30 mm। ठीक है, तो अब हमारा शाफ्ट का डायमीटर हो गया 30 mm। ठीक है, हमारे शाफ्ट का डायमीटर हो गया 30 mm। तो स्टेप 1 इज नाउ ओवर। ठीक है, डी इक्वल टू 30 mm हो गया। अब जैसे डी शाफ्ट डिजाइन हो गया, शाफ्ट के बाद क्या डिजाइन करना है? फ्लैंज। अब फ्लैंज में सारी इंपेरिकल हैं, जैसे डीएच। डीएच का मतलब होता है डायमीटर ऑफ हब, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2d। तो 2 इंटू 30 कितना आ गया? 60। ये क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ द हब क्या होता है? 1.5d। तो 1.5 इंटू 30 कितना आ गया? 45। पिच सर्किल रेडियस क्या होती है? 3d या 4d? तो 4d ले लेते हैं। तो 4 इंटू 30 120 आ गया। स्मॉल टी क्या होता है? स्मॉल टी होता है 0.5d। तो 0.5 इंटू 30 15 आ गया। T1 मतलब थिकनेस ऑफ द रिम। तो रिम की थिकनेस क्या होती है? 0.25d। 0.25 इंटू 30 कितना आ गया? 0.25 इंटू 30 करिए, 7.5। 7.5 mm को राउंड ऑफ करके 8 mm कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है? आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लैंज डीओ। तो डीओ क्या होता है? डीओ की वैल्यू होती है 4d प्लस 2t1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी मतलब 30। ठीक है, 4d प्लस 2t1। अब 2 इंटू टी1 कितना है हमारा? बताइए। T1 हमारा है 8। तो ये हो गया 120 प्लस 2 8 16। 120 प्लस 16 कितना हो गया? 136। तो ये 136 आएगा। ठीक है, ये गलत है, इसमें 136 mm। ये पुराने क्वेश्चन का छप गया है इसमें। अब D1 क्या होता है हमारा? ये तो पिन का डायमीटर है। तो पिन का डायमीटर मतलब अभी स्टेप 3 पे आ गए हम। तो अभी हमें तो पहले स्टेप 2 पूरा करना है। तो स्टेप 2 में हमने सारी डायमेंशन निकाल ली। सारी डायमेंशन निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू हब में और जंक्शन ऑफ द हब में, दो चेक हैं, एक एट द हब एंड एट द जंक्शन ऑफ द हब, कि वो वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से कहीं ज्यादा तो नहीं है फॉर द सेफ डिजाइन। तो जिस तरह से हमने रिजिड फ्लैंज कपलिंग में चेक किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस वाले स्टेप को स्किप कर रहा हूं। ठीक है, चेक वाले स्टेप को स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो सिमिलर स्टेप है, आप उसको उसी तरह कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको देखो स्टेप 1 बता दिया जिसमें हमने शाफ्ट को डिजाइन किया, डी की वैल्यू 30 आ गई। फिर मैंने स्टेप 2 बता दिया जिसमें फ्लैंज की ये सारी डायमेंशन आ गई। कौन कौन सी डायमेंशन आ गई? देखो ये डी एच आ गया, एल एच आ गया, डी आ गया, टी वन आ गया, टी आ गया, डी ओ आ गया, है ना। यहां तक हो गया हमारा काम, ये स्टेप 2। अब इतना करने के बाद चेक 1 और चेक 2 ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और ये चेक बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे आपने रिजिड फ्लैंज कपलिंग में किए हैं, सेम सेम एज इन रिजिड फ्लैंज कपलिंग। फॉर्मूले भी सारे सेम है। एक फॉर्मूला है टॉ इक्वल टू एम टी आर बाई जे, जे का फॉर्मूला है पाई डी एच फोर माइनस डी फोर बाई 32, एज यूजल उसी तरह से कर लेना। ठीक है, तो आई एम जंपिंग टू स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में मुझे डिजाइन करना है पिन को। सो डिजाइन ऑफ पिन। अब डिजाइन ऑफ पिन में मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है 0.5 डी बाई रूट एन और एक है टॉ इक्वल टू 8 एम टी डिवाइडेड बाय पाई डी एन डी वन स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं। तो अब इसमें देखो शाफ्ट का डायमीटर 30 मालूम है, तो ये वैल्यू तो 30 है। एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं बताइए? एन, कैपिटल एन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देखिए ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो एन इज नॉट गिवन। तो वंस एन इज नॉट गिवन एन कैन बी अज्यूम्ड, है ना, एन कैन बी अज्यूम्ड। तो एन को या तो आप 4 या 6 में से कोई एक अज्यूम कर लें। तो बिकॉज द शाफ्ट डायमीटर इज 30, इट इज नॉट वेरी हाई वैल्यू, तो वी कैन अज्यूम 4 पिंस, है ना, 4 पिंस आर सफिशिएंट। तो शाफ्ट का डायमीटर ज्यादा होगा, हैवी कंस्ट्रक्शन होगी, है ना, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द 6 नंबर ऑफ पिंस। सो हम n को 4 अज्यूम कर लेते हैं। तो अब हमारा d1 हो जाएगा 0.5 इंटू 30, 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई रूट n, है ना, रूट भी है साथ में, सो इट इज रूट 4। सॉल्व करिए जरा कितना है, 0.5 इंटू 30 बाई रूट n, हाउ मच इट इज कम? 7.5. 7.5 mm. 7.5. Okay, so it is 0.5 into 15 डिवाइडेड बाई रूट 4। अच्छा 6 से करिए कितना आता है? मान लीजिए 6 से करें तो कितना आएगा? 6.12. 6.12। तो इसमें इन्होंने 6 अज्यूम करके किया है ना। ये जो आपका आंसर आ रहा है ना, नीचे देखिए, नीचे आंसर्स गिवन है, तो ये D1 की वैल्यू कितनी आई है? 6.12। तो अब ये आपके ऊपर है, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 होने से गलत हो जाएगा, हमको तो शियर स्ट्रेस चेक करना है, वो विद इन लिमिट आना चाहिए। तो अभी क्वेश्चंस में 6 करके किया है, हम 4 से भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी आंसर्स मिलाने के हिसाब से मैं इसको 6 अज्यूम कर ले रहा हूँ कि मेरी n की वैल्यू 6 है। सो D1 इज कमिंग 6.12 mm, तो इसको राउंड ऑफ करके ये हो गया 7 mm। ठीक है, अब D1 मिल गया। जैसे D1 मिल गया तो अब ये चेक कर लो कि क्या पिन के अंदर शियर स्ट्रेस 35 से कहीं ज्यादा तो नहीं है ना। तो ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाओ और इस टॉ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। तो टॉ इक्वल टू 8 इंटू एम टी। अब आपका एम टी कितना आया था बताइए? एम टी तो आप निकाल चुके हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल एम टी, वो कितना आया था आपका बताइए? 397887 आया था, 397887.36, ये आपका एम टी आया था। तो 8 एम टी डिवाइडेड बाय पाई डी, डी मतलब पिच सर्किल रेडियस। अब पिच सर्किल रेडियस आपकी कितनी है? पिच सर्किल डायमीटर 120, so it is into 120 into n, n मतलब number of pins, number of pins is 6, d1 हमने कैलकुलेट किया 7 mm, so it is 7 square। सॉल्व इट, टॉ की वैल्यू क्या आ रही है बताइए? 28.72।
टॉर्क की वैल्यू आ रही है 28.72 7 2 है ना, तो 28.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो विच इज लेस देन 35 है ना, 35 की लिमिटेशन कोड की तरफ से है ना, तो 35 से यदि वो कम है तो इसका मतलब आवर पिन इज सेफ अंडर शेयरिंग, द डिजाइन ऑफ द पिन इज सेफ अंडर शेयरिंग फिनोमेना। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक काम हो गया। अब हमने पिन को डिजाइन कर लिया शेयरिंग के लिए, करेक्ट। अब आते हैं यहां तक होने के बाद डिजाइन ऑफ द बुश, है ना, पिन डिजाइन करने के बाद जो रबर बुश है, तो रबर बुश को डिजाइन करना है। तो रबर बुश के लिए प्रेशर की लिमिट कितनी अज्यूम की जाती है रबर बुश के लिए, है ना। अब मेरा स्टेप आ गया डिजाइन ऑफ द बुश, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, डिजाइन ऑफ रबर बुश, रबर बुश, है ना। ये रबर बुश, रबर इज फ्लेक्सिबल, सो फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स होने की वजह से द फ्लेक्सिबल कपलिंग कैन टॉलरेट द मिसअलाइनमेंट। सो this on this rubber bush the limit of the pressure is 1 megapascal as per the code। ठीक है, रबर बुश पे ज्यादा प्रेशर हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कम प्रेशर ही डाल सकते हैं, इसलिए रेडियल स्पेस बढ़ जाता है ना। एक पर्टिकुलर टॉर्क गेन करने के लिए फ्लेक्सिबल कपलिंग की जो साइज है, जो उसका पिच सर्किल डायमीटर है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो रेडियल स्पेस बढ़ जाता है, करेक्ट। तो ये तो हो गई हमारी प्रेशर की लिमिट। अब हम रबर बुश को डिजाइन कर रहे हैं, तो रबर बुश के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। उन दोनों फॉर्मूलों को हम क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं, एक तो लेंथ ऑफ द रबर बुश और डायमीटर ऑफ द रबर बुश, इसका रेशियो हम कितना मानते हैं 1। तो एक तो ये याद रखना है कि रेशियो ऑफ एलबी एंड डीबी इज 1, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, फॉर्मूला या तो बना सकते हैं या वहां से डाटा बुक से ले लीजिए। तो एक रबर बुश का प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, एक रबर बुश का प्रोजेक्टेड एरिया होगा डीबीएलबी, यही तो होगा डीबीएलबी, डीबी डायमीटर, एलबी लेंथ, तो ये हमारा एरिया हो गया। अब एक रबर बुश तो है नहीं, कितने रबर बुश हैं, जितने नंबर ऑफ पिंस हैं उतने ही नंबर ऑफ रबर बुश हैं। तो यदि n नंबर ऑफ पिंस हैं तो n नंबर ऑफ रबर बुश भी हैं। So this is multiplied by n. So this is the total area, correct? And this total area, when multiplied by pressure, it will give you the force. So what is the pressure? Pressure is Pm, है ना, जिसको कि हमने 1 अज्यूम करेंगे हम। So pressure is Pm. So area multiplied by pressure, it is the force. And when force multiplied by pitch circle radius, it will give you the torque, it will give you the torque, ठीक है। So torque is given by dBLB is dB square, है ना, because dB equal to LB, ये भी तो assumption है, dB equal to LB, तो dB into dB is dB square into n into pm, pm की वैल्यू 1 है तो into 1 लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी खत्म हो गया, into 1 into d/2, तो हाफ को सामने ले लेते हैं, हाफ dB स्क्वायर एंड dB स्क्वायर एंड डी, ये हमारा mt का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें mt हमें पता है, तो mt की वैल्यू कितनी है, 3,97,887, 3,97,887.36, ये तो हमारा mt है। हाफ dB डायमीटर ऑफ द रबर बुश अभी अननोन है, n number of the rubber bush ये तो पता है, 6 number of pins are there, तो 6 number of rubber bush is there, into d is the pitch circle diameter, pitch circle diameter is also known, it is 120 mm, so into 120, so now you only the unknown is dB, so you can determine dB from here। सॉल्व कर दीजिए और dB बताइए कितना है। 33.245। यस, सो dB ये मैच कर लीजिए आप यहाँ पे आंसर में, तो dB हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे की ये लाइन में dBLB इज 33.25, ठीक है। तो dB भी 33.25 हो गया, LB और dB इक्वल हैं, तो LB भी 33.25 हो गया, तो बुश की डायमीटर पता लग गई, बुश की लेंथ पता लग गई, तो इसका मतलब आपने बुश को डिजाइन कर लिया,
यू हैव डिजाइन द बुश। ठीक है, तो ये बुश की डिजाइन होगी। इसको राउंड ऑफ करके इन्होंने 35 mm कर दिया, 33.25 को 35 कर, यदि आप इसे 33.25 भी कैलकुलेट करते हैं एग्जाम में, यू विल गेट फुल। ठीक है, तो ये बुश की डिजाइन कंप्लीट हो गई। अब बुश के बाद कौन सी डिजाइन आती है? पिन की डिजाइन आती है ना, पिन की नहीं, पिन की तो हो चुकी। अब बची लास्ट स्टेप की डिजाइन, है ना। तो मैं इसको फिर से अगेन क्लियर कर ले रहा हूं। तो मैं की डिजाइन लास्ट स्टेप पर हूं। तो की डिजाइन बिल्कुल सेम है जैसा रिजिड फ्लैंज कपलिंग में हुई थी, है ना। क्या होती है डायमेंशन? BHL। बी और एच कहां से पता लगाया जाता है? डाटा बुक से, है ना। डाटा बुक कैसे देखोगे? वही वाली 9.3 टेबल नंबर 9.3, उसमें आप देखोगे कॉलम डी के लिए हमारा साफ्ट डायमीटर कितना है? 30 के अगेंस्ट में B क्रॉस H देख लेना, तो जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो वो 8/7 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 8/7। तो B हो गया 8, H हो गया 7। अब L क्या होता है? एज यूजुअल L इक्वल टू लेंथ ऑफ द हब, तो L इक्वल टू LH। अब LH हमारा क्वेश्चन में कितना आया है? 45। तो L की वैल्यू भी 45 हो गई। तो हमारी की हो गई 8/7/40। ये हमारी की डायमेंशन। तो देखिए लास्ट आंसर इज गिवन, की डायमेंशन हो गई 8/7/45। ठीक है, अब की तो डिजाइन हो गई, लेकिन आपको की के अंदर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, दोनों को चेक करना है। तो टॉ का फॉर्मूला 2mt/dbl और सिग्मा सी का फॉर्मूला 4mt/dhl। ठीक है, टॉ की वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से कम होनी चाहिए, सिग्मा सी की वैल्यू सिग्मा सी परमिसिबल से कम होनी चाहिए, शियर स्ट्रेस की वैल्यू शियर स्ट्रेस परमिसिबल से कम होनी चाहिए, सिग्मा सी की वैल्यू सिग्मा सी पी से कम होनी चाहिए, है ना। अब बताइए क्या ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है? परमिसिबल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको की का मटेरियल स्वयं ही डिसाइड करना है। तो जैसे कि हमने शाफ्ट का मटेरियल डिसाइड किया था 40C8, उसी तरह की का मटेरियल हमने डिसाइड किया 30C8, उसका SYT डिसाइड किया 400, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने ले लिया 2, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने ले ली 1.5 गुनी, और उसके अकॉर्डिंग हमने टॉ निकाल लिया, सिग्मा सी निकाल लिया। टॉ कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2, और सिग्मा सी कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 मेगापास्कल, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 मेगापास्कल। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस 100 से कम रहना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस 300 से कम रहना चाहिए। इट मींस आवर की इज सेफ बोथ अंडर शियर एंड एज वेल एज कंप्रेशन। सो दिस कंप्लीट्स द की डिजाइन। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट रह जाता है, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो जैसे हमने D1 निकाला है, तो शियरिंग फिनोमेना से 7 mm आंसर आया है। कितना आंसर आया? 7 mm। अब इसी D1 को यानी पिन का डायमीटर यदि हम बेंडिंग फिनोमेना से निकालेंगे, तो बेंडिंग फिनोमेना में आपको कैसे निकलेगा? वही My/I जो मैंने अभी आइडिया दिया था, सिग्मा बी इज My/I। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, उससे आपको D1 मिलेगा। D1 की वैल्यू 10.82, उसको राउंड ऑफ करके 12, तो शियरिंग से आ रही है 7, बेंडिंग से आ रही है 12। सो फाइनल क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन फॉर द पिन इज बेंडिंग। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द फ्लेक्सिबल कपलिंग डिजाइन। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। रिजिड कपलिंग में केवल 4 स्टेप थे, यहां पे 5 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? 5 स्टेप है। वो कैसे? देखो, रिजिड कपलिंग में पहला स्टेप काय का था? शाफ्ट का। इसमें भी शाफ्ट का ही है, नो चेंज। ये रिजिड, ये फ्लेक्सिबल, ध्यान से देखिएगा। दूसरा स्टेप काय का था? फ्लैंज डायमेंशन। इसमें भी फ्लैंज डायमेंशन नो चेंज, सेम। तीसरा स्टेप यहाँ पे काय का था? बोल्ट का। यहाँ पे काय का है? पिन का, क्योंकि यहाँ तो बोल्ट यूज होते ही नहीं। फ्लेक्सिबल कपलिंग में तो पिन यूज होती है इन प्लेस ऑफ बोल्ट। तो तीसरा स्टेप में चेंज है। ठीक है, फॉर्मूले भी हल्के हल्के चेंज है। अब चौथा स्टेप यहाँ पे चौथा स्टेप की का आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी हमें बुश को भी डिजाइन करना है, तो यहाँ बुश आएगा। और फिर यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है, 5वां स्टेप, वो की का स्टेप होता है। तो यहाँ केवल 4 स्टेप होते हैं, यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं।
यहाँ पे एक स्टेप बुश का बढ़ जाता है, बोल्ट की जगह पर पिन आ जाता है। दिस इज द चेंज, रेस्ट आर सिमिलर। ठीक है, अब बोल्ट पे आप देखें तो कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं, शियर और कंप्रेसिव। ठीक है, और पिन पे कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं, शियर और बेंडिंग। ये इंटरव्यू के हिसाब से, वाइवा के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। जब कभी भी आपसे कपलिंग की बात होगी तो आपको ये पता रहना चाहिए कि किस पर कौन कौन से स्ट्रेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जनरली साफ्ट पे कौन से स्ट्रेस आते हैं, साफ्ट पे तो बेंडिंग भी आते हैं, शियर भी आते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रेस आते हैं। लेकिन साफ्ट डक्टाइल मटेरियल होते हैं, तो इस वजह से हम उसको कौन सी थ्योरी से डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से डिजाइन करते हैं, है ना। तो हम जनरली इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। अब फ्लैंज तो कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं तो फिर ये ब्रिटल मटेरियल के बनाए जाते हैं, कास्टिंग से बनाए जाते हैं। तो फ्लैंज की चेक पर कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं, शियर स्ट्रेस आता है हब पर और जंक्शन ऑफ दी हब पर। बोल्ट पे कौन कौन से स्ट्रेस हैं, शियर और कंप्रेसिव। ठीक है, की पे कौन कौन से स्ट्रेस हैं, शियर और कंप्रेसिव। अब फ्लेक्सिबल कपलिंग में आ जाओ, साफ्ट पे वही हो गया इक्विवेलेंट शियर, फ्लैंज पे वही हो गया शियर स्ट्रेस इन दी हब एंड शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ द हब। पिन पर हो गया शियर और बेंडिंग, शियर एंड बेंडिंग। और बुश पे जो है प्रेशर है ना, प्रेशर एज्यूम कर लेते हैं बुश पे, पीएम इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है वाइवा में कि बुश का प्रेशर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, सो दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 मेगापास्कल। है, और ये पूछ लेते हैं कि पिन का शियर स्ट्रेस की लिमिट क्या है, तो पिन का शियर स्ट्रेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35 मेगापास्कल। ये दोनों वैल्यू याद रखने की इंपॉर्टेंट। शियर स्ट्रेस इन द पिन should not be exceed 35 and pressure on the bush, rubber bush should not exceed 1 megapascal। बाकी की आ गया, की पे तो सेम है, वही शियर एंड कंप्रेसिव। सो दिस कंप्लीट्स द डिजाइन ऑफ कपलिंग, है ना। तो अब आपकी कोई क्वेरी हो, इसका मैटलैब प्रोग्राम भी अब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, है ना, आपको स्वयं बनाना है। क्लियर ऑल सीएलसी उसी तरह बन जाएगा। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, otherwise I will end this class. In the next class we are going to start spring. Okay, क्वेश्चन कौन सा है, मैटलैब में कौन से क्वेश्चन को करना है सर? मैटलैब में यस सर। फुल डिजाइन वाला, जो फुल डिजाइन ऑफ द है ना, जिसमें 5 स्टेप हैं, वो कर। ठीक सर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।